हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिफी लर्निंग। आज़ादी के 74 साल मुबारक हों आप सभी को। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Commemorating the nation's independence from British rule, India will celebrate its 74th Independence Day this year, but with a slight twist. और वो slight twist क्या है? वो twist है कोरोना की हम सभी के लाइफ में एंट्री। It's one of the greatest pandemic that has hit the whole world और हमारा इंडिपेंडेंस डे भी हो गया है कोरोना का शिकार, क्योंकि कोरोना की वजह से सोशल गैदरिंग्स पर लग गया है एक छोटा सा विराम। Instead, the state and government offices are asked to webcast their programs and celebrations. तो मेरा आज का ये वीडियो देश की आज़ादी के नाम हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं या कैसे मनाते हैं। हम एक दूसरे को विश करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, फ्लैग होस्टिंग का हिस्सा बनते हैं या कुछ प्रोग्राम्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। पर हमारी आज़ादी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनसे हम आज भी अनजान हैं। तो आज मैं अपने इस वीडियो से आपको आज़ादी से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही फैक्ट्स बताने जा रही हूँ। Let's know some interesting facts about India's independence through this video. Moving on to fact number 1, and this fact is about our Indian national flag, जिसे हम तिरंगा या ट्राइकलर भी बोलते हैं। हमारे तिरंगे से जुड़ी हुई एक कंट्रोवर्सी है कि इसे डिजाइन किसने किया। So originally our tricolor was designed by Sri Pingali Venkaiah ji, and the flag he designed consisted of a spinning wheel or charkha in the center. Later on, the charkha was replaced by Ashoka Chakra, which was taken care by Suraiya Badruddin Tyabji, also known as Suraiya Tyabji. So now the fact is clear. तिरंगे का कंसेप्ट चरखे के साथ लेकर आए थे श्री वेंकैया जी और उसको अशोक चक्र से मॉडिफाई करने का काम किया था डिजाइनर तयाब जी ने। Let's move forward to fact number 2 और ये फैक्ट है एक ऐसे जिले के बारे में जिसको इतिहास ने बागी करार दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बागी बलिया की, also known as Rebel Balia. The reason behind that is people of Balia fought for the freedom and achieved it on 19th August 1942. Quite earlier as compared to the whole nation, और तब से बलिया बन गया बागी बलिया। And if we turn the pages of history, we will find that our 8th Prime Minister Shri Chandrasekhar Singh Ji, who held the office from 10th November 1990 to 21st June 1991, was from a small village of Balia. जी हाँ, बलिया के इब्राहिम पट्टी में एक किसान परिवार के घर में जन्मे थे श्री चंद्रशेखर सिंह जी। और वो कहते हैं ना कि जिस मिट्टी से आप जुड़े हुए हों उसके बारे में लोगों को बताने में आपको बहुत आनंद आता है। एंड दिस फैक्ट इज अ ट्रिब्यूट टू माय पैटर्नल होम टाउन बलिया। Now let's move forward to fact number 3, and this fact is about our national anthem जन गण मन। क्या आप जानते हैं जब हमें आजादी मिली तब हमारे देश के पास हमारा खुद का कोई नेशनल एंथम नहीं था। Our national anthem was adopted in the later years of 1950 on 24th January, which means 2 days before when India became republic. And our national anthem in its original form was first sung at Calcutta session of Indian National Congress on 27 December 1911 और इसको लिखने का काम किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली में और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था आबिद अली जी ने। नेशनल एंथम से जुड़ा हुआ एक फैक्ट तो आप सभी जानते होंगे। नेशनल एंथम को उसके ओरिजिनल फॉर्म में गाने के लिए 52 सेकेंड्स लगते हैं।
Moving forward to the next fact, and this fact is related with the dates of independence of India and Pakistan. पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त और इंडिया का 15 अगस्त क्यों? पाकिस्तान को एक दिन पहले आजादी क्यों मिली? क्या ऐसे क्वेश्चंस कभी आपके दिमाग में आए हैं? So it was because of Lord Mountbatten ji, who was the last Viceroy of India. Being the Viceroy, he had to be present at both the places respectively. Therefore, the dates of independence for India and Pakistan were decided as 15th and 14th of August. अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी जरूर आया होगा, तो फिर इंडिया को 14th को आजादी क्यों नहीं मिली, 15th को ही क्यों? तो वो भी लॉर्ड माउंटबेटन जी की वजह से, who wanted to honor the second anniversary of Japan's surrender to Allied power. जी हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी के एटम बम अटैक के बाद, जो कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हुआ था, उसके बाद जापान ने एलीड पावर के सामने सरेंडर कर दिया था 15 अगस्त 1945 को। इसीलिए 1947 में उसकी सेकेंड एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना चाहते थे लॉर्ड माउंटबेटन जी, and that is the reason why 15th August was selected as the Independence Day for India. Moving forward to fact number 5, and fact number 5, it's about the countries that share the Independence Day with India. The countries are South Korea, Republic of Congo and Liechtenstein. ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका इंडिपेंडेंस डे भी 15th अगस्त ही है। Now let's talk about fact number 6. क्या आप जानते हैं जब पूरा देश आजादी मना रहा था तब गोवा वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्चुगीज। गोवा हमारे इंडियन यूनियन का पार्ट बना 19 दिसंबर 1961 में और इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। Now let's move forward to fact number 7. It deals with our national language. अगर आप आज तक ये बोलते आ रहे हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो ये फैक्ट जरा ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज इज द लैंग्वेज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, जिसका मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डर्स, नोटिसेस 2 लैंग्वेज में इशू किए जाते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, because these 2 languages are easily understood by the majority of the population dwelling in India. Therefore, Hindi and English are the official language, not the national language of India. Moving on to fact number 8. This fact is about the princely states. क्या आप जानते हैं आजादी के बाद भी 560 princely states ऐसे थे जो आजादी के बाद इंडियन यूनियन का पार्ट बने, जिसमें से हैदराबाद was the last state to become the part of the Indian Union, and that too because of सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसीलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। Now let's talk about the 9th fact. It deals with the line that separates India and Pakistan. इस लाइन को ड्रॉ किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने, इसीलिए इस लाइन को बोला जाता है रेडक्लिफ लाइन, और ये लाइन इंडिया और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटती है। Moving forward, let's talk about the last fact of the day, और ये फैक्ट है फजल कमीशन के बारे में। खान बहादुर सैयद सर फजल अली, जिनको हम फजल अली के नाम से भी जानते हैं, वॉज एन इंडियन जज और ये गवर्नर थे 2 इंडियन स्टेट्स के, आसाम एंड ओडिशा। अलॉन्ग विद दैट ही वॉज द हेड ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको फजल कमीशन के नाम से बुलाया जाता था। इस कमीशन का काम क्या था? इस कमीशन ने स्टेट्स की बाउंड्रीज लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिसाइड की, जैसे
जो एरिया जहां पर मराठी बोली जाती है बन गया महाराष्ट्र, वो एरिया जहां पर बंगाली बोली जाती है बन गया बंगाल। इसीलिए इंडिया को हम एक ऐसी कंट्री के रूप में भी जानते हैं जहां पर स्टेट्स की बाउंड्रीज वहां बोले जाने वाली भाषा ने डिसाइड की। Therefore, India is also called as a tower of veritable language or a museum of languages. And the division of states in India is hence done on the linguistic basis. तो ये तो हो गए 10 अमेजिंग फैक्ट्स। होप आपको पसंद आए हो। अगर पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करिए। एंड यस, अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है मेरे चैनल का तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। एंड along with that, hit the bell icon to get the recent updates. Thank you for watching and once again wish you all a very happy Independence Day. जय हिंद, जय भारत।